મુંબઈ ભારત અને વિશ્વ માટે આતંકવાદ વિરોધી પ્રતીક છે, જે બાબતને લઈ વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે શું કહ્યું, આવો જાણીએ। વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે જણાવ્યું કે મુંબઈ ભારત અને વિશ્વ માટે આતંકવાદ વિરોધી પ્રતીક છે। જ્યારે અમે યુએનએસસીના સભ્ય હતા ત્યારે અમે આતંકવાદ વિરોધી સમિતિના અધ્યક્ષ હતા। અમે સુરક્ષા પરિષદની બેઠક પ્રથમ વખત તે હોટેલમાં યોજી હતી જ્યાં મુંબઈમાં આતંકવાદી હુમલો થયો હતો। જ્યારે વિશ્વ જુએ છે કે આ આતંકવાદની પડકાર સામે કોણ મજબૂત રીતે ઊભું છે, ત્યારે લોકો કહે છે કે ભારત આજે અમે આતંકવાદ સામે લડવામાં નેતા છીએ। મુંબઈમાં જે થયું તે ફરી ન થવું જોઈએ। અમે ખૂબ સ્પષ્ટ છીએ, અમને આતંકવાદને ઉઘાડવું પણ છે। વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે મુંબઈને આતંકવાદ વિરોધી પ્રતીક તરીકે વર્ણવ્યું અને જણાવ્યું કે મુંબઈ 26/11ના આતંકવાદી હુમલાઓ ભારત માટે એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ હતી। આ હુમલાઓએ વિશ્વને બતાવ્યું કે ભારત આતંકવાદ સામે મજબૂત રીતે ઊભું છે। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આજે ભારત આતંકવાદ સામે લડવામાં નેતા છે અને અમે આ પડકાર સામે મજબૂત રીતે ઊભા છીએ। અમે આતંકવાદને ઉઘાડવા માટે પણ પ્રતિબદ્ધ છીએ અને વિશ્વને બતાવવું છે કે ભારત આ લડતમાં મજબૂત છે। આ પ્રસંગે વિદેશ મંત્રીએ જણાવ્યું કે મુંબઈમાં જે થયું તે ફરી ન થવું જોઈએ અને અમે આ માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ। આ નિવેદન દ્વારા વિદેશ મંત્રીએ ભારતની આતંકવાદ સામેની મજબૂત પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવી અને વિશ્વને સંદેશ આપ્યો કે ભારત આ લડતમાં મજબૂત છે। मैं मुंबई में एक किस्म से देश के लिए और मैं कहूँगा दुनिया के लिए ये एक काउंटर टेररिज्म का सिंबल है। ये शहर जब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे तो हम जो हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष थे और वो काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हमने पहली बार भारत में की, वो मुंबई शहर में की और हमने उसी होटल में किया जहां आतंकवाद का घटना हुआ था। तो हमारा एक, मैं कहूँगा कि दुनिया जब देखती है कि टेररिज्म के इस चुनौती के सामने who is standing strong, who is standing firm, who is standing clear, people say India. We are today, I would say, leaders in fighting terror. So we have to be very clear in this country. जब हम कहते हैं we say zero tolerance of terrorism, that if somebody does something, there will be a response. We should not have a repeat of what happened in Mumbai, that there was an attack on the city and there was no response. That is not good for us, it is not good for the world. So we are very clear on this and we also have to expose. It cannot be कि आप, daytime you are doing business, night time you are terrorist and I have to pretend everything is okay. This India will not accept it. This is what has changed 10 years ago. So we will expose terrorism, we will publicly take on terrorism. Where we have to act, we will act. We will act after thinking through. So we have a very clear stand on this. Talent जो है वो employable और इसमें भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं और हम ये भी मानते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रोजगारी जो है ये खाली देश में नहीं है। ये एक किस्म से आज के ज़माने में हम एक ग्लोबल वर्क प्लेस देखते हैं कि और अलग अलग देशों में यूरोप हो, अमेरिका हो या मलेशिया में भी आज हमने समझौतों के कारण ऐसी स्थिति के वहाँ उत्पन्न की है कि हमारे लोग जो हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए भी जा सकते हैं और रोजगारी के लिए भी जा सकते हैं। तो पिछले दिनों में जो विदेश नीति की परिप्रेक्ष्य से जो उल्लेखनीय बात जो है, एक तो जैसे मैंने कहा जर्मनी के चांसलर अभी आए थे। कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री खुद जो हैं सिंगापुर गए थे। G7 की सम्मेलन में वह शामिल हुए, जो विकसित देश हैं, जो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ज़्यादातर वहाँ से इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आती थी। जब वो UN गए और US गए तो वहाँ जो मेन बड़ी कंपनी, जो टेक्नोलॉजी लीडर्स, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनसे भी मिले ताकि वहाँ से पूंजी निवेश यहाँ आए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक फोकस, एम्प्लॉयमेंट फोकस, डेवलपमेंट फोकस ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है ये तीसरे टर्म।
अब किसी भी देश के लिए ये सब इसकी एक किस्म से ये केंद्र बिंदु तो है जरूर, परंतु इसके अलावा हमें सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि वो एक किस्म से इट्स एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो आपने ये भी देखा होगा कि बॉर्डर की सिक्योरिटी हो या काउंटरिंग टेररिज्म, और जो हमारे पड़ोस में कभी कभी अस्थिरता होती है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो नेबरहुड में भी घटनाएं हुई हैं और उसको भी मैं कहूँगा जरूर ठीक तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और दुनिया के पॉलिटिक्स में आज दुनिया एक वहाँ भी एक तनाव का सिचुएशन बना है। तो तीसरे कार्यकाल में मोदी जी का खुद इनिशिएटिव लेना यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में, कि वो रूस भी गए हैं, यूक्रेन भी गए हैं, पिछले कुछ दिन ब्रिक्स के कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ भी वो उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है, तो हम वहाँ भी एक इनिशिएटिव ले रहे हैं।